A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. I am Arvind Mishra, Deputy Director, and we are studying Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015. And this is session number 3 for Black Money Act. In these sessions, we read through the Act, we try to understand the meaning of the provisions, and we interpret the meanings that can be derived from the provisions, and we try to analyze how this act will be implemented or is being implemented. As you are aware, the Black Money Act is being implemented by the Income Tax Department, and we are at section 18. So beginning with section 18, and primarily the lecture would be in the Hindi language to help all those people who speak and understand only Hindi and not English, and it will be interspersed with a little bit of English here and there, and I will try to ensure that I use both the languages to some extent. Okay. Appeals to appellate tribunals. Section 18. 18.1. Any assessee who is aggrieved by an order passed by the Commissioner appeals under Section 15, or an order passed by the Principal Commissioner or Commissioner under any provision of this Act, may appeal to the appellate tribunal against such order. तो जो अपील appellate tribunal के पास जाएगी, that will be against the Commissioner appeal order या फिर PCIT या CIT के order. PCIT and CIT can pass the revision orders, and therefore, or any other order that the officer of the level of CIT and above passes, CIT and PCIT, and apart from that, any order that the Commissioner appeals pass करते हैं, so that will go to the ITAT in appeal. So any other order apart from these orders will not go to the ITAT, rather it will go to the Commissioner appeals first. Like any order which is passed by a joint commissioner and below ranks, that will go to the Commissioner appeals, and then thereafter, once the Commissioner appeals decides the matter, it will further go to the ITAT. 18.2 says that the Principal Commissioner or the Commissioner may, if he objects to any order passed by the Commissioner appeals under any provision of this Act, direct the assessing officer to appeal to the appellate tribunal against the order. The PCIT or CIT can direct the assessing officer to appeal to the appellate tribunal against any order which is passed by the Commissioner appeals, and which means that therefore the direction has to come from the PCIT or the CIT to the assessing officer, and it should be a clear-cut direction, not just an approval. So this is quite a good technical point, that if there is only an approval and no direction as such, then any appeal filed by the assessing officer in the ITAT may lose out. तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को डायरेक्शन देना है, असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देना है कि वो एपेलेट ट्राइब्यूनल में ऑर्डर, जो भी कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर है जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन है उनको, उसके खिलाफ वो अपील फाइल करें. And 18.3 says that every appeal under subsection 1 or subsection 2 shall be filed within a period of 60 days. और ये जो दोनों अपीलें हैं, subsection 1 and subsection 2, they shall be filed within a period of 60 days from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the assessee. अगर वो assessee फाइल कर रहा है उस अपील को, तो जिस तारीख में वो कम्युनिकेट हुआ था असेसी को CIT अपील्स का ऑर्डर, कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर, उस तारीख से 60 डेज में वो अपील फाइल कर सकता है ITAT में.
या अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को डायरेक्शन देना है फाइल करने के लिए, तो जब वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को कम्युनिकेट होती है उस तारीख से, मान लीजिए कि कमिश्नर अपील्स ने अपना ऑर्डर CCIT को भेज दिया, लेकिन अभी प्रिंसिपल कमिश्नर के पास नहीं आया है, एंड बाद में वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास आता है, तो जिस तारीख में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को कम्युनिकेशन मिलता है उस तारीख से ये जो टाइम है, जो बारिंग टाइम है अपील फाइल करने का 60 डेज का, वो शुरू हो जाएगा। Now 18(4) says the assessing officer or the assessee, as the case may be, on receipt of the notice that an appeal against the order of the Commissioner Appeals has been preferred under subsection 1 or subsection 2 by the other party, may, notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, within 30 days of the receipt of the notice, file a memorandum of cross objections verified in the prescribed manner against any part of the order of the Commissioner Appeals, and such memorandum shall be disposed of by the appellate tribunal as if it were an appeal presented within the time specified in subsection 3. यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को जब नोटिस मिलता है, whenever the assessing officer या assessee दोनों में से किसी को जब ये नोटिस मिलता है on the receipt of the notice कि अपील जो है कमिश्नर अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट प्रेफर कर दी गई है सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में बाय द अदर पार्टी, यानी असेसी को नोटिस मिलता है कि असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्शन लेके PCIT या CIT का अपील फाइल कर दी है, या फिर असेसिंग ऑफिसर को नोटिस मिलता है यानी उनके संज्ञान में ये बात आती है, उनके नॉलेज में ये बात आती है बाय सम इंफॉर्मेशन दैट हैज कम टू हिम, एंड सच इंफॉर्मेशन विल नॉर्मली be coming from the ITAT itself. जब भी ऐसा होता है कि एक पार्टी के पास ये नोटिस आता है कि दूसरी पार्टी ने कमिश्नर अपील के खिलाफ सबसेक्शन 1 या 2 में ITAT में अपील फाइल कर दी है, तो भले ही उस पार्टी ने अपील न किया हो, notwithstanding that he may not have appealed against such order, भले ही उस पार्टी ने, टाइम निकल गया और भले ही उसने अपील नहीं किया था उस ऑर्डर के खिलाफ या उसके किसी पार्ट के खिलाफ, अब वो उसके पास 30 दिन का टाइम होता है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस। जब वो नोटिस को प्राप्त होता है असेसी को या असेसिंग ऑफिसर को, उसके 30 दिन के अंतर्गत वो एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, जो कि प्रिस्क्राइब मैनर में उसको वेरीफाई करना होगा। और ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो है वो कमिश्नर अपील्स के किसी भी ऑर्डर के पार्ट के खिलाफ हो सकता है। कोई उनको बात पसंद नहीं आई है कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर में जिसके खिलाफ उन्होंने अपील नहीं की है, लेकिन अपील नहीं भी की है, तो यहाँ पे 18(4) में जब उनको नोटिस मिलता है कि दूसरी पार्टी ने अगर अपील कर दी, भी कई बार ऐसा है कि मान लो दूसरी पार्टी अपील कर नहीं रही तो हमें अपील करने की क्या ज़रूरत है। एक असेसिंग ऑफिसर को पता है कि उसने कोई एडिशन किया था और कमिश्नर अपील ने कंफर्म कर दिया है और असेसी ने कोई अपील फाइल नहीं की है। अगर असेसी कोई अपील फाइल नहीं कर रहा तो हम भी कोई अपील फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी टैक्स हमें लेना था वो तो हमने अपने ऑर्डर में लिख दिया है और असेसी शायद वो टैक्स दे देगा। अब लेकिन असेसी क्या करता है, आखिरी दिन अपील फाइल कर देता है और हमें पता नहीं उसने अपील फाइल कर दी, तो हमारा डिसीजन जो है वो असेसी के ऊपर निर्धारित था कि अगर वो अपील फाइल करेगा तो हम भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जब हमें नोटिस में आता है, जब भी असेसिंग ऑफिसर को नोटिस में आता है और इसी तरह से जब असेसी को नोटिस में आता है कि दूसरी पार्टी ने अपील फाइल कर दी है, तो जिस तारीख में वो नोटिस में आता है वहां से 30 दिन में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है कमिश्नर अपील के सामने। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि किसी उन्हीं मुद्दों पे फाइल किया जाए या उन्हीं मैटर्स में फाइल किया जाए जो कि दूसरी पार्टी लेके आई थी अपने अपील में, बल्कि ये किसी भी ऑर्डर के पार्ट के खिलाफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। एंड सच मेमोरेंडम शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एपेलेट ट्राइब्यूनल, और ऐसे मेमोरेंडम को एपेलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा एज इफ इट वर एन अपील,
जैसे कि वो अपील हो, अपील के तरह से उसको उसको सुनवाई उस पर करनी होगी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस पे, और वो टाइम पे जैसे फाइल हुई हो, भले ही वो टाइम निकल गया है, लेकिन ये मान लिया जाएगा, ये लॉ में प्रोवाइड किया गया कि 30 डेज का टाइम में अगर ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल हो जाता है तो इसको अपील मानना होगा, और अपील मानते हुए इसको डिस्पोजल इसका करना होगा। उसके बाद 5 है 18(5), द अपीलेट ट्राइब्यूनल में एडमिट एन अपील और परमिट द फाइलिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 इफ, कुछ सिचुएशंस में, कुछ स्थितियों में अपीलेट ट्राइब्यूनल जब टाइम निकल जाता है 60 डेज का, उसके बाद भी अपील को एडमिट कर सकते हैं, या क्रॉस ऑब्जेक्शंस, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस के लिए जो 30 दिन का टाइम होता है उसके निकलने के बाद भी परमिट कर सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिया जाए, यदि निम्नलिखित कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। और वो कौन सी कंडीशंस हैं? विच आर दोज कंडीशंस? ए, if the appellate tribunal is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period, अगर वो संतुष्ट हैं appellate tribunal कि पर्याप्त कारण था, sufficient cause था, जिसकी वजह से जो दिया गया पीरियड ऑफ टाइम है उसमें अपील नहीं फाइल की जा सकी, और दूसरा ये कि जो भी डिले है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं है। अगर डिले 1 साल से ज़्यादा का नहीं है और पर्याप्त कारण था, इस बात से अपीलेट ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है, तो वो फर्दर टाइम भी इसमें दे सकते हैं और अपील को उसके आगे के समय में भी एडमिट कर सकते हैं। उसके बाद 18(6) में आ रहा है, एन अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल्ड इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर and shall, except in the case of an appeal referred to in subsection 2 or a memorandum of cross objections referred to in subsection 4, be accompanied by a fee as may be prescribed. जो अपील फाइल की जाएगी, एक तो वो उस फॉर्म में फाइल की जाएगी और उस मैनर में वेरीफाइड होगी जो कि प्रेस्क्राइब्ड होगा, और सिवाय जो अपील सबसेक्शन 2 में फाइल किया जा रहा है या जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस है इसका रेफरेंस 4 में है, और तो उसके साथ एक फीस भी लगानी होगी, यानी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस के साथ फीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसेक्शन 2 में जहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर डायरेक्शन दे रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को कि अपील फाइल की जाए, तो उनको भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी अथॉरिटी है, उसको अपने आप को फीस, सरकार को ही फीस देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर पीसीआईटी के डायरेक्शन पे अपील फाइल होती है तो नो फीस हैज़ टू बी अकम्पनीड, और उसके अलावा फीस हैज़ टू बी पेड इन अदर केसेस। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करने में भी कोई अपील, कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो असेसी भी क्यों ना कर रहा हो, even if the assessee is filing the memorandum of cross objections. Now we come to 18(7). Now 18(7) says that the subject to the provisions of this act, in hearing and making an order on an appeal under this section, the appellate tribunal shall exercise the same powers and follow the procedure as it exercises and follows in hearing and making an order on any appeal under the Income Tax Act. इस एक्ट के प्रावधानों के अधीन कोई भी हियरिंग करने में या कोई ऑर्डर करने में किसी अपील पे इस सेक्शन के तहत जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेगा और वही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो वो पावर्स एक्सरसाइज करता है या प्रोसीजर फॉलो करता है जब वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत हियरिंग कर रहा है या उसमें कोई ऑर्डर कर रहा है। यानी जो प्रोसीजर है और जो पावर्स हैं वो वही फॉलो करना है अपीलेट ट्राइब्यूनल को जो इनकम टैक्स एक्ट में वो फॉलो करते हैं। So now we move to section 89.
We go to section 19, and section 19 talks about appeal to the High Court. And in section 19(1), an appeal shall lie to the High Court from every order which is passed in appeal by the appellate tribunal, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. So, हाई कोर्ट में तभी अपील फाइल हो सकती है जब हाई कोर्ट का ये सेटिस्फैक्शन हो कि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे हाई कोर्ट में कोई भी अपील फाइल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ ही कंडीशंस में, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में हाई कोर्ट अपने ऐसे पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी, जहाँ पर भी कोई प्रोसेस का अब्यूज़ हो रहा है कोर्ट के या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के, या कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो नॉर्मली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जिसमें वो कोई भी अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी रिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसे सेक्शन 482 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड सेक्शन 226 इज ऑल्सो देयर। सो और रिट जुरिस्डिक्शन भी होता है कोर्ट्स के पास, जिसमें वो कोई भी अपील्स या कोई भी रिट्स जो कि अपील का ही मैटर रिट के रूप में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको डिसाइड कर सकते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। बट हाउएवर इन द नॉर्मल केसेस when those powers are not exercised, High Court has to be satisfied that there is a substantial question of law. Substantial मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत question of law होना चाहिए, ordinary question of law भी नहीं, it should be a substantial question of law जिसमें substance है, ऐसा question of law, इस बात से हाई कोर्ट को satisfy होना चाहिए। और अगर हाई कोर्ट satisfied है if there is a substantial question of law involved in the case, in the matter, then appeal shall lie to that high court, otherwise not. Now 19(2) says the principal CCIT or the CCIT or the PCIT or the CIT or an assessee may file an appeal to the high court on being aggrieved by any order passed by the appellate tribunal, and such appeal shall be filed within a period of 120 days. अपील फाइल करने के खिलाफ कुछ बात नहीं है, अपील लाए करे चाहे ना करे, अपील फाइल किया जा सकता है एसएससी के द्वारा या पीसीसीआईटी, सीआईटी, पीसीआईटी या सीआईटी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है अगर वो एग्रीव्ड है, अगर उनको शिकायत है किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जो ट्राइब्यूनल ने पास किया है, और ऐसी अपील जो है इट विल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज रिसीव्ड बाय द सेट अथॉरिटी और द एसएससी। सो वो अथॉरिटी जब रिसीव करती है अपील ऑर्डर, उससे 120 दिन का टाइम उसके पास रहता है, या एसएससी के पास भी 120 दिन का टाइम रहता है जब उसको ऑर्डर प्राप्त होता है कि वो अपील फाइल कर ले, और वो इस रूप में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अपील, एक मेमोरेंडम के रूप में होना चाहिए। और so which means that there is no prescribed form for this, but it has to be in the form of a memorandum of appeal, which is precisely stating, उस memorandum of appeal में, memorandum just means a written document जो communicate किया जाता है, so a memo for short. So a memo of appeal, you can say a note of appeal, which precisely has to state therein that there is a substantial question of law involved. Memorandum of appeal में specifically state करना पड़ेगा, because first of all the assessee has to be convinced that there is a question of law, there is a substantial question of law, or otherwise it cannot be filed. Because the time of the court is very precious. Why should they go into such appeals where no such statement has been made that there is a substantial question of law? So if the assessee is making a statement, and normally if it is a false statement, and if it turns out that the assessee knew that due to his experience that there was no substantial question of law, still he is
saying that there is substantial question of law. A fine and all can be always imposed by the High Court under its own powers. So they are insisting upon a statement. वो आग्रह कर रहे हैं कि आप एक स्टेटमेंट फाइल करिए जिसमें आप कहिए कि there is a substantial question of law involved there. So this statement, this memorandum of appeal has to be there, and this memorandum of appeal has to be stated precisely that there is a substantial question of law involved over there, and it has to be filed within the time which is prescribed here. Now, High Court may admit an appeal after the expiry of the period of 120 days referred to in subsection 2 if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within that period. हाई कोर्ट एडमिट कर सकता है अपील को, 120 दिन का समय एक्सपायर होने के बाद भी एडमिट कर सकता है अगर हाई कोर्ट संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण थे ना फाइल करने के अपील के विद इन दैट पीरियड. और यहाँ पे कोई 1 साल का टाइम का लिमिटेशन भी नहीं है जो कि ITAT केस में होता है. दैट मीन्स दैट अगर हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट हैं सफिशिएंट कॉज था, चाहे 1 साल से ज़्यादा का भी हो, तो भी हाई कोर्ट एडमिट कर सकते हैं उस अपील को. और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हैं कि एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उस किसी भी केस में, तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो हाई कोर्ट हैज़ टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन. उनको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, वो रूप देना पड़ेगा. मतलब क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेट करना पड़ेगा. वाइल पासिंग द ऑर्डर सबसे पहले वो कहेंगे ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसको हम डिसाइड करने जा रहे हैं. सो दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. ये जरूरी रिक्वायरमेंट है कि हाई कोर्ट हैज़ टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन. क्योंकि हाई क्वेश्चन क्या है, इट हैज़ टू बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक वर्ड्स. खास शब्दों में इसको स्टेट किया जाना चाहिए कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन. सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड बाय हाई कोर्ट. उनको करना ही है फॉर्मुलेट अगर वो संतुष्ट हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है. सीधी सी बात है, अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो वो सीधे रिजेक्ट कर केस और उस पर आगे उनको कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है. Unless and until there are some other reasons which I have stated earlier कि भाई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में जहाँ पर कोई अब्यूज हो रहा है प्रोसेस का कोर्ट के, तो दैट हैज़ टू बी ऑलवेज कर्व्ड. Now 19(5) says that the appeal shall be heard only on the question so formulated. एक बार ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया उसके बाद अपील को केवल उस क्वेश्चन पे सुना जाएगा और कोई बात अपील में नहीं सुनी जाएगी. क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन इस बात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपील की सुनवाई उसी क्वेश्चन के रिलेशन में होगी. एंड द रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन. एंड रिस्पोंडेंट्स विल हैव अ राइट टू आर्ग्यू although the question has already been formulated and High Court has already expressed satisfaction. But during the argument still, the other party will have the alternative or the option to argue that that case does not involve any such question of law. Argument can still be done. Normally क्या है कि once a decision has been made by any court, and that court does not hear on that decision. हियर यहाँ पर क्या एक डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि वी आर सेटिस्फाइड एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन है और वो फॉर्मुलेट कर देते हैं. उसके बाद आर्ग्यूमेंट की बारी आती है तो आर्ग्यूमेंट में ये राइट दिया गया है दोनों पार्टीज को कि वो इस बात पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं. क्योंकि अगर ये राइट एक्ट के तहत ना दिया जाता तो वो इस राइट को यूज नहीं कर वो इस तरह से आर्ग्यू नहीं कर सकते थे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज हाई कोर्ट ने अपना सेटिस्फैक्शन व्यक्त कर दिया होता था. लेकिन यहाँ पर इस स्टैच्यूट के तहत, लॉ के तहत ये राइट दिया जा रहा है दोनों पार्टीज को कि वो इस बात पर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है जो कि फॉर्मुलेट किया गया. नाउ 19(6) है, notwithstanding anything in subsections 4 and 5, the High Court may exercise its power to hear the appeal on any other substantial question of law not formulated by it. 4 और 5 में कुछ भी लिखा हो उसको नज़रअंदाज करते हो हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है और हाई कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो अपील को
किसी और सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी सुन सकते हैं जो उन्होंने फॉर्मुलेट नहीं भी किया था, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि उस केस में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर बाद में कोई भी पार्टी आर्ग्यू करती है या हाई कोर्ट को खुद पता लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी वो सुनवाई कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं। और इसमें ये बात निहित है कि अगर उनको हियर करना है तो दे कैन फॉर्मुलेट दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ आल्सो। Now the High Court shall decide the question of law so formulated, जो भी उन्होंने फॉर्मुलेट किया है क्वेश्चन ऑफ लॉ वो डिसाइड करेंगे उसको, एंड डिलीवर सच जजमेंट देयर ऑन, और उस पर ऐसा जजमेंट देंगे, कंटेनिंग द ग्राउंड्स, जिसमें वो ग्राउंड्स होंगे, इस जजमेंट में वो ग्राउंड होगा, ऑन विच सच डिसीजन इज फाउंडेड, जिन ग्राउंड्स पे वो डिसीजन आधारित है या जो नींव है उस डिसीजन के, उन ग्राउंड्स को जो आधार हैं उनको उसमें मेंशन करेंगे कि कौन से ग्राउंड्स डिसीजन दिया है, किस आधार पे वो डिसीजन दिया है, एंड मे अवार्ड सच कॉस्ट एज डीम फिट, और वो कॉस्ट भी अवार्ड कर सकते हैं जैसा कि वो चाहें, जैसा वो फिट समझें। यानी कॉस्ट अवार्ड करने का पावर यहाँ पे हाई कोर्ट को दिया गया। ये नॉर्मली पनिशमेंट के रूप में कॉस्ट होती है कि जिसमें किसी ने अगर हाई कोर्ट का टाइम व्यर्थ में वेस्ट किया और व्यर्थ के आर्गूमेंट किए और ऐसा कोई मैटर था नहीं जो, या गुमराह किया हाई कोर्ट को किसी भी पॉइंट पे, इतना डिले किया मैटर कि हाई कोर्ट अपने डिसीजन पे टाइम से ना पहुंच पाए, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं जिसमें कि कॉस्ट लगाया जा सकता है। और ऑफ कोर्स अगर कोई कोई क्रिमिनलिटी कमिट की गई है तब तो खैर हाई कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह फाइल किया जाए। नाउ 19(8) says the High Court may determine any issue which has not been determined by the appellate tribunal. कुछ ऐसे इशू भी हो सकते हैं जो appellate tribunal के समक्ष ना आए हों, और चूंकि यह मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है और वो इशू appellate tribunal के सामने नहीं भी आया था, लेकिन ऐसा नया इशू कोई उठा दिया गया हाई कोर्ट के सामने, तो उसको भी वो डिसाइड कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो इशू डिस्कशन में है उससे कनेक्टेड भी होते हैं, और उन कनेक्टेड इश्यूज को डिसाइड करे बिना जो मेन इशू को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। तो हाई कोर्ट को एक रेंज मिली हुई है, एक फ्रीडम है यहाँ पे कि किसी भी इशू को वो तय कर सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट के समक्ष मामला चल रहा है तो दे कैन गो इनटू एनी इशू व्हाटसोएवर। हाई कोर्ट हैज गॉट द पावर, नॉट जस्ट दैट इशू जो कि ट्राइब्यूनल के सामने थे, बट उसके अलावा किसी भी इशू पे वो जा सकते हैं जो कि एपेलेट ट्राइब्यूनल ने डिटरमिन नहीं किया है, नहीं डिटरमिन किया है, नहीं उनके सामने भले ही ले भी नहीं जाया गया हो तो भी कर सकते हैं उसको डिटरमिन, ले जाया गया हो डिटरमिन नहीं किया हो उसको भी कर सकते हैं, वापस एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास भी भेज सकते हैं, इसको डिसाइड करके भेज दीजिए, बट खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास कोई इशू ले जाया गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उस इशू को डिसाइड नहीं किया जो ले जाया गया था, तो उस केस में भी हाई कोर्ट भी डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं उस मैटर को, उस मुद्दे को, उस इशू को। और अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने ऐसा कोई इशू था ही नहीं और पहली बार हाई कोर्ट में रेज हुआ तो उसको भी हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। और या फिर वो रॉन्गली डिटरमिन किया गया एपेलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा बाय रीजन ऑफ अ डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने था और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कोई इशू डिसाइड किया, और उस क्वेश्चन लॉ को जब डिसाइड किया तो वो गलत तय कर दिया उन्होंने, जो उनका डिसीजन था वो गलत हुआ, तो उस डिसीजन को उलटते हुए उस इशू को डिटरमिन कर सकते हैं हाई कोर्ट। तो अगर कोई मुद्दा नहीं भी आया था उसको भी कर सकते हैं, जो आया है उससे भी कर सकते हैं, जो गलत डिटरमिन हो गया। और जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रावधान हैं, जो हाई कोर्ट में अपील से रिलेटेड प्रावधान है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, वो अप्लाई करेंगे अपील्स में, इस सेक्शन में भी। वहाँ जो भी प्रावधान अपील्स टू हाई कोर्ट के लिए, जैसे सिविल कोर्ट के लिए जो प्रावधान कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में है उनको बोरो किया जा रहा है, इससे वो प्रावधान यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे।
Now, when the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under subsection 7, अब सेक्शन 7 में सबसेक्शन 7 में कहा गया कि वो जजमेंट देंगे, तो जब वो उस जजमेंट को डिलीवर करते हैं तो इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर पास्ड ऑन द अपील बाय द असेसिंग ऑफिसर। उस अपील पे जो ऑर्डर पास किया गया हाई कोर्ट के द्वारा उसको इफेक्ट दिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट। यानी जब तक कोई सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं आती है तो ही इज नॉट सपोज टू गिव इफेक्ट टू दैट order which is not a certified copy, because so many orders are being passed. So obviously this is a good move where a certified copy should be received by the assessing officer, and then he should give the effect to that order on the basis of the certified copy. So as far as the provisions of the Code of Civil Procedure are concerned, these are mainly related to procedural aspects, and we may not go deeply into them because we are reading them in Income Tax Act also. Therefore, for the purpose of Black Money Act, we will not go deeply into that procedure. That's the appellate tribunal procedure, where Code of Civil Procedure provisions have been or are being used to conduct the appeals in the appellate tribunal. Okay, अब आते हैं High Court rather. Now we come to section 20. सेक्शन 20 में कहा गया कि केस बिफोर हाई कोर्ट टू बी हर्ड बाय नॉट लेस देन 2 जजेस। हाई कोर्ट के सामने जो केस आता है 2 जज से कम उसको नहीं सुनेंगे। 21 says an appeal filed before the high court shall be heard by a bench of not less than 2 judges of the high court and shall be decided in accordance with the opinion of such judges, or if the bench is of more than 2 judges, by the majority of the. See, the very important point here is that the word opinion has been used. Whenever a judge decides anything, judge has the authority or the power to decide a case on the basis of an opinion that he forms. Because for the judge to reach a conclusion, it should be his own opinion that this is the way it should be determined. उन्हें मालूम होना चाहिए, उनका ये मत होना चाहिए, ये मैटर इस प्रकार से डिटरमिन तय किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल जब वो अपना मत पक्का करेंगे तभी उसको डिसाइड कर सकते हैं। So as soon as he forms an opinion, as soon as the judge forms an opinion, यहाँ बिलीफ शब्द का यूज नहीं किया गया, जज को कोई इंक्वायरी नहीं करनी, जज को एग्जिस्टिंग मटेरियल पे ओपिनियन फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीफ पैदा करने के लिए ओपिनियन के बियॉन्ड जाना पड़ता है और एक इंक्वायरी करके और मजबूती से एक बिलीफ पैदा करना पड़ता है। लेकिन जज यहाँ पे एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं और जैसे ही वो ओपिनियन फॉर्म करते हैं वो डिसीजन उस ओपिनियन के बेसिस पे दे सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर के लेवल पे कई जगह ओपिनियन है, कई जगह बिलीफ है, तो जहाँ पे जैसा है उस तरह से लॉ अप्लाई करती है। तो देयरफॉर एज एक न्याय प्रक्रिया के रूप में जहाँ पे न्यायिक जज बैठे हैं तो वो किसी मुद्दे को ओपिनियन के आधार पर डिसाइड करेंगे, जिससे कि लॉ केस का जो व्हील्स हैं वो तेजी से चल सकें। तो इसलिए एक ओपिनियन पे जज अपने डिसीजन दे सकते हैं। और यहाँ पे 2 जजेस की बात की जा रही कि जब भी कोई ब्लैक मनी एक्ट के तहत कोई अपील फाइल होती है 2 जज से कम नहीं सुनेंगे उसको, और जो डिसाइड होगा मुद्दा वो उनके ओपिनियन के हिसाब से डिसाइड होगा, या अगर यानी दोनों एक ही ओपिनियन के होने चाहिए। उनके ओपिनियन से होगा डिसाइड का मतलब अगर दोनों अगर अलग अलग ओपिनियन के हैं दोनों जजेस तो फिर वो डिसीजन नहीं हो सकता, तो मैटर को 3 जज के बेंच के पास भेजना पड़ेगा। और अगर वहां पे 2 से ज्यादा जज हैं तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा। एंड व्हेन देयर इज नो सच मेजॉरिटी, और जब कोई मेजॉरिटी ऐसी नहीं होगी तो जजेस शैल स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर।
अगर मेजॉरिटी नहीं है तो जजेस स्टेट कर देंगे कि ये पॉइंट ऑफ लॉ है जिसमें हम डिफर कर रहे हैं, एंड द केस शैल देन बी हर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली, यानी उसी पॉइंट पे केस को सुना जाएगा बाय वन और मोर ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, या तो एक जज के द्वारा या एक से ज़्यादा जजेस के द्वारा उसी पर्टिकुलर पॉइंट को सुना जाएगा, एंड सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हु हैव हर्ड द केस, इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड। उसके बाद जो जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के ओपिनियन पे होगा, और उस मेजॉरिटी में वो जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले उसको सुना था, और वो भी शामिल होंगे जिन्होंने उसको बाद में सुना। तो जैसे दो जजेस हैं और वो आपस में डिफर कर गए, तो वो लिख सकते हैं कि हम इस पॉइंट पे डिफर करें, जिस पॉइंट पे वो डिफर करें हैं केवल वही पॉइंट की सुनवाई की जाएगी और दूसरे जजेस जो अपॉइंट किए जाएंगे उस मैटर में, और कुल मिला के सारे जजेस का जो ओपिनियन है उसके मेजॉरिटी पे डिसाइड होगा वो मुद्दा। नाउ वी कम टू सेक्शन 21। Section 21 says that appeal to Supreme Court. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment of the High Court delivered under Section 19, which the High Court certifies to be a fit case for appeal to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील फाइल की जाएगी किसी हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इसके पहले 19 सेक्शन में डिलीवर हो रहा है, जिसको हाई कोर्ट सर्टिफाई करेंगे कि ये फिट केस है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करते हैं कि अपील के लिए फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता है क्योंकि हाई कोर्ट एक डिसीजन देते हैं तो वो किस आधार पर डिसाइड करें कि ये फिट केस है अपील, दैट मीन्स दे आर डाउटिंग देयर ओन जजमेंट। तो ऐसे बहुत कम केस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट देते हैं। हाई कोर्ट ऐसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं जहां वो दूसरे हाई कोर्ट्स ने कुछ और डिसीजन लिया हुआ है और वो उनसे डिफर कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ अगर दूसरे हाई कोर्ट्स ने कुछ और डिसीजन लिया है, विपरीत डिसीजन लिया हुआ है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पर एसएससी के लिए फिर चारा क्या है, एसएससी क्या करता है कि ही मेक्स एन एसएलपी, स्पेशल लीव petition before the Supreme Court, or even the department is doing that. In most of the cases, when we are going to Supreme Court, we are going through the special leave petition and not through a High Court certificate. उसके बाद आते हैं सेक्शन 22, हियरिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हियरिंग के विषय में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 1908 में जो प्रोविजंस हैं which relate to appeals to the Supreme Court, they shall, so far as may be, they will apply in the case of appeals under section 21. वही अप्लाई करेंगे सेक्शन 21 के अपील्स में भी, एज दे अप्लाई इन द केस ऑफ अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ द हाई कोर्ट। इस प्रकार से वो जब हाई कोर्ट की डिक्रीज होती हैं और हाई कोर्ट के डिक्री ऑर्डर्स होते हैं, जो अपील्स होती हैं उसमें जो भी प्रावधान लगते हैं, डिक्रीज का मतलब जो सिविल केसेस में जो भी ऑर्डर्स होते हैं हाई कोर्ट के, और उसमें जो प्रावधान है फॉर हियरिंग दोज मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, वही प्रावधान यहाँ पर प्रोसीजर से रिलेटेड प्रावधान है जो लगेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द अपील शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा कि दे वांट दे कैन इम्पोज द कॉस्ट, दे डोंट वांट दे नीड नॉट इम्पोज द कॉस्ट। एंड वेयर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज वैलिड और रिवर्स्ड इन द अपील, जहाँ पर भी हाई कोर्ट का जजमेंट जो था वो अपील में रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है, या उसमें विविधता आ जाती है, चेंज कर दिया जाता है, इफेक्ट शैल बी गिवन टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 19। तो जिस तरह से इफेक्ट देने की बात की गई है 1910 में, उसी तरह से यहाँ पर भी असेसिंग ऑफिसर उस पर इफेक्ट देंगे, उस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरह से 1910 में भी असेसिंग ऑफिसर को उस पर इफेक्ट देने की बात की गई है। Now we come to section 23. Now section 23 is revision of orders prejudicial to revenue. ये रिवीजन पर का प्रावधान है, जैसे 263 प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में, उसी के समकक्ष कह सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट में ये रिवीजन का प्रावधान है, और इसमें कहा जा रहा है कि इन सेक्शन 23 इट इज सेड 23(1)
that the principal commissioner or the commissioner may, for the purposes of revising any order passed in any proceeding under this act, before any tax authority subordinate to him, call for and examine all the available records relating thereto. प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को ये पावर है कि कोई भी अगर ऑर्डर पास किया गया है किसी भी प्रोसीडिंग में इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ब्लैक मनी एक्ट के तहत, जो प्रोसीडिंग हुई थी किसी ऐसी टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जो उनके सबॉर्डिनेट है, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के प्रोसीडिंग में अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है, उसको रिवाइज करने के लिए, उसके रिवाइज करने के प्रयोजन से प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कॉल कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं सारे अवेलेबल रिकॉर्ड्स को जो उससे रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन कॉल एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स इन द केस वेयर, जहाँ पर रिवाइज करने के पर्पज से सबसे पहला जो काम करना है, दे हैव टू कॉल एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड. And then 23(2), ECIT or CIT may, after giving the SSC an opportunity of being heard, and then thereafter, after giving an opportunity of being heard to the SSC, they shall pass an order. They may pass an order, hereinafter referred to as the revision order, जिसको हम revision order कहेंगे, as the circumstances of the case justify. ऐसा order जैसे कि परिस्थितियाँ justify कर रही हैं, जैसे परिस्थितियाँ उचित घोषित कर रही हैं या जो उचित है जैसा ऑर्डर, वैसा ऑर्डर वो पास करेंगे. इफ ही सेटिस्फाइड, या जो न्यायोचित है, जस्टिफाई मतलब न्यायोचित कहा जाएगा. एंड इफ ही सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर sought to be revised is erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of the revenue. तो अगर वो एरोनियस है, एरोनियस का मतलब देयर इज एन एरर, मतलब कोई उसमें गलती है, हो गई है. और गलती किस तरह की होनी चाहिए? गलती ऐसी होनी चाहिए कि वो जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में के प्रेजुडिशियल हो, रेवेन्यू के इंटरेस्ट के प्रतिकूल हो. अगर ऐसी गलती जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में हो, उस गलती को यहाँ पे रिवाइज नहीं करना है. तो केवल ये बात कही जा रही है कि जो गलती ऐसी है जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट के प्रतिकूल हो, ऐसी गलती को ठीक करने के लिए कमिश्नर को, ECIT को ये पावर दिया गया है कि वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं. उसके पहले वो कॉल करेंगे रिकॉर्ड और एग्जामिन करेंगे, फिर SSC को अपॉर्चुनिटी देंगे और उसके बाद अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी ऑर्डर था वो एरोनियस था, उसके एरर को बताएंगे, और एरर ऐसा था जो कि प्रेजुडिशियल था इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के, ये भी उसको डिसाइड करना होगा. उसके बाद 1823(3) में कहा जा रहा है कि PCIT और CIT में मेक और कॉज टू बी मेड such inquiry as he considered necessary for the purpose of passing an order under section 2. इंक्वायरी का पावर है. डिवीजन ऑर्डर पास करने से पहले जो भी चाहे वो इंक्वायरी कर सकते हैं. ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो भी पावर दिए गए इंक्वायरी करने के, इंक्वायरी कर सकते हैं. और द रिवीजन ऑर्डर पास बाय द PCIT और CIT अंडर सबसेक्शन 2 may have the effect of enhancing or modifying an assessment. और ये ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें कि असेसमेंट को एनहांस भी किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. बट शैल नॉट बी एन ऑर्डर कैंसलिंग द असेसमेंट. लेकिन असेसमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई किया जा सकता है. लेकिन मॉडिफाई भी वहाँ जहाँ पे एरोनियस हो, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के प्रेजुडिशियल हो, तभी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. और लेकिन किसी असेसमेंट को कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट नहीं डायरेक्ट कर सकते, नहीं किसी भी केस को टोटली सेट असाइड करके या एनल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते असेसमेंट को. एनलमेंट का जैसे पावर CIT अपील के लेवल पे होता है, और लेकिन यहाँ पर फ्रेश असेसमेंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता, असेसमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, केवल उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या उसको एनहांस किया जा सकता है. और उसके बाद 23(5) में कहा गया कि द पावर ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 2 फॉर रिवाइजिंग एन ऑर्डर शैल एक्सटेंड टू सच मैटर्स एज हैव नॉट बीन कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन एनी अपील. PCIT या CIT का पावर है सबसेक्शन 2 में, किसी भी ऑर्डर को रिवाइज करने का जो पावर है वो ऐसे मैटर्स पे भी एक्सटेंड करेगा जो कि अपील
में कंसिडर ना किए गए हों या ना डिसाइड किए गए। मान लीजिए कि मैटर अपील में है या अपील में डिसीजन भी हो गया है और उसके बावजूद कोई ऐसी कोई मैटर था जो कि अपील में नहीं था और उस पर रिवीजन ज़रूरी है, तो रिवीजन किया जा सकता है। क्योंकि जो मैटर अपील में थे वो अपील में डिसाइड अगर कर दिए गए हैं तो वहाँ से अपील जाती है ITAT के पास। जो मैटर अपील में डिसाइड कर दिए गए उस पर प्रिंसिपल कमिश्नर रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कमिश्नर अपील ने डिसाइड कर दिया कोई मैटर, वहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन जो मैटर नहीं कंसिडर हुए हैं अपील में या नहीं डिसाइड हुए हैं, वहाँ पे वो कंसिडर और डिसाइड अपील में नहीं हुए हैं, उन मैटर्स पे रिवीजन किया जा सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा। Now, no order under subsection 2 shall be made after the expiry of a period of 2 years. लेकिन ये समय सीमा इसके लिए है और 2 साल के बाद ये ऑर्डर नहीं किया जा सकता from the end of the financial year in which the order sought to be revised was passed. जब भी ऑर्डर इसको रिवाइज करना है वो पास हुआ था, उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 2 साल का समय रहता है जिसमें ये ऑर्डर किया जा सकता है रिवीजन का, उसके बाद नहीं किया जा सकता। और notwithstanding anything in subsection 6, कोई भी बात अगर सबसेक्शन 6 में है उसको नजरअंदाज करते हुए, जो टाइम लिमिट है 2 साल का, कि an order in revision under this section may be passed at any time in respect of an order which has been passed in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order of the appellate tribunal or high court or supreme court. अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जो किसी फाइंडिंग या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पास किया गया है अपीलेट ट्राइब्यूनल की, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट, यानी मान लीजिए कि अपीलेट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग या डायरेक्शन दिया और उस फाइंडिंग या डायरेक्शन को के कॉन्सिक्वेंस में या उसको इफेक्ट देने के लिए कोई ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है PCIT के द्वारा इस सबसेक्शन में, इस सेक्शन में 23 सेक्शन में। और लेकिन जो ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा, जो टाइम यहाँ दिया हुआ है 2 साल का, वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 साल ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज पास किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिवीजन के लिए 2 साल का टाइम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑर्डर मॉडिफाई किया जाएगा जो कि किसी हायर कोर्ट के फाइंडिंग या डायरेक्शन के ऊपर पास किया गया है। यानी अगर उसमें कोई त्रुटि है जो कि रेवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं है, रेवेन्यू के इंटरेस्ट के प्रतिकूल है, तो उस त्रुटि को ठीक करने के लिए ये सब सेक्शन 7 में जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है या जो ऑर्डर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइंडिंग या डायरेक्शन, दैट कैन आल्सो बी रिवाइज्ड बाय द PCIT. The PCIT being a senior authority, he has the power to revise the order of the assessing officer. If the officer has committed an error, because officer जो पास कर रहा ऑर्डर, he may be a junior officer and he may not have that much knowledge, और वो एरर कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति वैसे भी एरर के बियॉन्ड नहीं होता है, तो एक मौका यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई भी एरर है उसको ठीक कर दिया जाए। ऐसे कंडीशन में अगर कोई मैटर जैसे अपील में चल रहा है, और तब उस केस में क्या होगा अगर ये सोचा जाए, तो कोई किसी मैटर पे अपील फाइल्ड है, तो कमिश्नर अपील के सामने वो हियरिंग चल रही, अगर इस केस में, ऐसे केस में अगर अपील डिसाइड नहीं हुई है, अगर अपील डिसाइड हो गई उस मैटर में, तब तो उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक अपील चल रही है उसके पहले रिवीजन किया जा सकता है, और अगर रिवीजन किया जाता है तो उस मैटर पर भी कमिश्नर अपील्स के सामने मुद्दा चला जाएगा और वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। इन अपना जो ऑर्डर है वो उसके लाइट में दे सकते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया है रिवीजन के लेवल पे एरर को ख़त्म करने के लिए, अगर वो एरर को ठीक से ख़त्म किया गया, नहीं ख़त्म किया गया, उस लाइट में अपना वो जो कमिश्नर अपील्स हैं
उससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, बिकॉज मैटर उनके सामने ऑलरेडी पेंडिंग है। किसी मैटर पे उनके सामने जो पेंडिंग हो, अगर कोई रिवीजन कर दिया गया, और रिवीजन तो ऐसा नॉर्मली होगा जो एसएससी के खिलाफ प्रतिकूल होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के प्रतिकूलता को खत्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब एसएससी के प्रतिकूल जाएगा। एसएससी के प्रतिकूल जा रहा है, और वो मुद्दा डिस्कशन में है सीआईटी अपील के लेवल पर भी। जब सीआईटी अपील उसको देखेंगे, तो ही कैन also pass his view, his opinion, and then the matter will go into the tribunal, and even on the CIT's order, tribunal may an appeal can always pass filed. Therefore, then tribunal can combine those two orders and decide the matter. लेकिन अगर अपील में डिसाइड कर दिया जाता है कोई भी मैटर को, वो डिसाइडेड मैटर पे रिवीजन फिर नहीं किया जा सकता, और वो फिर अपील में ही डिसाइड होगा। और ट्राइब्यूनल में ही मतलब अपील में डिसाइड होगा। उसके बाद 23(8) है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सबसेक्शन 6 द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड। तो जो बीच में जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो कुछ टाइम को एक्सक्लूड किया जा रहा है टाइम पीरियड के लिए, जिसमें कि ऑर्डर पास करना है। जैसे जो टाइम दिया गया इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी टू बी रीहर्ड अंडर सेक्शन 7, या any period during which any proceeding under this section is stayed by any order of the injunction of any court. स्टे का जो टाइम है उसको भी एक्सक्लूड करना है। सेक्शन 7 में क्या अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 7 में जहाँ पे चेंज ऑफ इनकम्बेंट की बात की गई है, एसएससी अपॉर्चुनिटी मांग रहा है और उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है, तो जो समय इस अपॉर्चुनिटी देने में लगता है उसमें भी उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा while deciding as to by when the order has to be passed. In division. And then we have subsection 9, which says that without prejudice to the generality of the foregoing provisions, an order passed by a tax authority shall be deemed to be erroneous. फोरगोइंग प्रोविजन की जनरलिटी तो अपनी जगह पे है ही है, यानी कि जो शब्द यूज किए जा रहे हैं कि प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू. So these words should be taken in a very general way, I mean a larger perspective, and not in a very narrow way. But certainly, जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है ए बी सी, इन दीज केसेस इट इज डेफिनेट दैट द ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एरोनियस. यहाँ पर एरोनियस मान लिया जाएगा ऑर्डर, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के प्रेजुडिशियल था, ये मान लिया जाएगा इफ द पीसीआईटी और द सीआईटी इज ऑफ द ओपिनियन. पीसीआईटी और सीआईटी को ये ओपिनियन व्यक्त करना है कि इन तीन में से अगर कोई चीज़ है तो डेफिनेटली दैट इज an order which is erroneous and prejudicial to the interest of the revenue and cannot be challenged on that basis, and will not succeed if the opinion of the principal commissioner or the commissioner is grounded on reasonable basis. तो जो ओपिनियन है प्रिंसिपल कमिश्नर का, उसका ग्राउंड रीजनेबल होना चाहिए कि ये ऑर्डर जो पास किया गया है, इट हैज बीन पास विदाउट मेकिंग इंक्वायरीज और वेरिफिकेशन विच शुड हैव बीन मेड. जैसी इंक्वायरीज या वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी, अगर वो कर ली जाती तो ये ऑर्डर पुख्ता हो जाता, मजबूत हो जाता. देयर वाज अ केस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, लेकिन बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए अगर कोई भी ऐसी इंक्वायरी थी जो कंडक्ट करनी चाहिए थी और वो इंक्वायरी नहीं कंडक्ट की गई, और कोई ऐसा वेरिफिकेशन था जो करना चाहिए था जो नहीं किया गया, और उसके ना करने की वजह से जो ऑर्डर पास हुआ वो प्रेजुडिशियल है रेवेन्यू के इंटरेस्ट में. तो क्यों प्रेजुडिशियल है? क्योंकि वहाँ पे एक ओपिनियन पीसीआईटी का आ सकता है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे कि यहाँ पे अगर इंक्वायरी या वेरिफिकेशन किया जाता तो उसका रेवेन्यू के बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता. इस आधार पे
वो ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा ओपिनियन है कि उनका ओपिनियन है कि जो इंक्वायरी या वेरिफिकेशन उन्होंने वो बताएंगे अपने ऑर्डर में कि ये किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया, और अगर किया जाता तो ये इंटरेस्ट के फेवर में हो जाता रेवेन्यू के। इस तरह का ओपिनियन उनको व्यक्त करना होगा और उसका वो ओपिनियन रीजनेबल होना चाहिए और मटेरियल के बेस पे ऐसे लगना चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को कि हाँ, अगर ये मटेरियल हो तो उस पर लगता है हाँ, इंक्वायरी करने से ये केस पुख्ता हो जाता। जैसे किसी केस में बहुत क्लियर कट आ रहा है कि कोई कैश डिपॉजिट की बात आई, अब उसको वेरीफाई नहीं किया गया और ये मान लिया असेसिंग ऑफिसर ने कि वो नॉर्मल कैश डिपॉजिट है। अब जहाँ पे कैश डिपॉजिट आ रहा है, ये फैक्ट आ गया है रिकॉर्ड पे, तो शुड हैव बीन एग्जामिन्ड एंड वेरीफाइड। वैसे केस में CIT कैन पास एन ऑर्डर रेक्टिफाइंग दिया, लेकिन यहाँ पे CIT को जब ऑर्डर पास करना है तो वो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं, वो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी करके वो अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि PCIT इंक्वायरी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इंक्वायरी अगर वो खुद कर सकते हैं तो ही कैन ऑलवेज गिव दैट इंक्वायरी टू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू डू। और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अगर वो कहते हैं कि ये इंक्वायरी करिए और इंक्वायरी का उनको रिजल्ट दीजिए, तो ही हैज़ टू डू इट। और तो देयरफॉर ही कैन ऑलवेज गेट एन इंक्वायरी डन। When we say that he can make an inquiry, it will also include that he can get the inquiry done instead of making inquiry himself. Even that inquiring about something means that you can inquire from another officer also. Please let me know what are the facts in this case. So therefore, अगर वो ये समझते हैं कि अगर वो इस ओपिनियन के हैं, इस मत के हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन जो करने चाहिए थे, विच शुड हैव बीन मेड, और इसलिए प्रेजुडिशियल हो गया टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, if he arrives at this opinion that order is passed without making the inquiries or verification which should have been made, तो ये मान लेंगे वो, वहाँ पे फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मान लिया जाएगा कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो CIT है, the principal CIT has to simply show that number one, some inquiry or verification should have been made, number two, no inquiry or no such inquiry or verification has been made, and B में कहा जा रहा है the order has not been made in accordance with any order, direction or instruction issued by the board. Board has issued some direction, instruction or order, and this order is not made according to that instruction. So board के order की अवहेलना करके कोई order कर दिया गया, जो कि अगर board के order की अवहेलना करके कोई order कर दिया गया है तो फिर ये नहीं सोचना है कि उससे रेवेन्यू टैक्स कितना आ रहा था। वो अपने आप में काफ़ी है कि बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर जा रहा है तो प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू का कोई केवल इसमें नहीं होता है कि टैक्स ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी कार्य हो वो विधि अनुसार हो, वो है रेवेन्यू का इंटरेस्ट। तो इसलिए जैसे ही ये तय हो जाता है कि कोई बोर्ड के ऑर्डर या डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन का अनुपालन नहीं किया गया या उसके अनुसार ऑर्डर नहीं पास किया गया, तो अपने आप में ये मान लिया जाएगा कि वो प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, चाहे इससे टैक्स बच भी रहा हो एसएससी का। Still the 263 order can be, still the 23 order can be passed. Now C में कहा जा रहा है the order has not been passed in accordance with any decision prejudicial to the SSE rendered by the jurisdictional high court or the Supreme Court in the case of the SSE or any other person under this act or the income tax act. तो यहाँ पर भी ये डीविंग प्रोविजन है कि अगर jurisdictional high court है, जिस jurisdiction का केस है, वहाँ के हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर रेंडर किया हुआ है जो एसएससी के प्रेजुडिशियल था उस मैटर पे, और ये जो ऑर्डर पास किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, ये उस जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार नहीं है, और वो जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एसएससी के प्रेजुडिशियल था, और मतलब बोर्ड के केस में नहीं देखना है कि बोर्ड का डायरेक्शन एसएससी के प्रेजुडिशियल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो अगर वो प्रेजुडिशियल है एसएससी के
और उस जुडिशल हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पास किया गया, तो ये मान लिया जाएगा कि वहाँ पे देयर इज अ प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। और अगर वो किसी सुप्रीम या फिर किसी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया ऑर्डर हो जो कि रेंडर किया गया और वो प्रेजुडिशियल हो एसएससी के, तो उसका अगर अनुपालन नहीं किया गया, भले ही वो ऑर्डर एसएससी के केस में हो या किसी और पर्सन के केस में हो, इस एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट में भी अगर हो, और उसका अनुपालन नहीं किया गया, तो स्ट्रेट अवे इट विल बी डीम्ड टू बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो ये 3 केसेस में डीमिंग प्रोविजन है, लेकिन ये पूरे केस नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इन्हीं केसेस में प्रेजुडिशियल होगा। रेवेन्यू के इंटरेस्ट में जो भी प्रेजुडिशियल है, ये जनरल, काफ़ी जनरल वे में इसको लिया जाएगा, बहुत पर्टिकुलर वे में नहीं लिया जाएगा इसको, यानी व्यापक रूप से इसको परिभाषित किया जा रहा है। इसीलिए लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉर्म। अगर ये 3 पॉइंट लिख दिए गए तो इसके पहले के प्रावधान की जनरलिटी हम प्रतिकूल नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रतिकूलता प्रदान नहीं कर रहे हैं, जनरलिटी बनी हुई है। ये स्पेसिफिक चीज़ें लिखने का मतलब ये नहीं कि हमने प्रोविजन को लाके यहाँ तक संकीर्ण कर दिया, नैरो कर दिया। नो, द जनरलिटी रिमेन्स and the words prejudicial to the interest of revenue will be interpreted in their own generality. And 2310 says that in this section, record shall include all records relating to any proceeding under this act available at the time of examination by the PCIT or the commissioner. Records means records available. तो ये व्यू नहीं लिया जा सकता कि साहब एक रिकॉर्ड था जो कि अवेलेबल नहीं था, उन्होंने देखा नहीं इसलिए वो ऑर्डर नहीं कर सकते थे। अरे जो भी अवेलेबल है रिकॉर्ड, उसको उनको कॉल फॉर करके एग्जामिन करना। मालिक कोई रिकॉर्ड गया हुआ कहीं और अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, कोई अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फाइन, अनलेस अंटिल देयर इज समथिंग इन दैट रिकॉर्ड जो चीज़ इस बात के विपरीत चली आती जो रिवीजन ऑर्डर के खिलाफ। इफ इट कैन बी शोन कि हाँ उस रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात थी तो ये देख लेते तो ये रिवीजन का ऑर्डर नहीं हो सकता था, देन ऑफ कोर्स दैट रिकॉर्ड विल बिकम इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज if the record is available, those record which are record means record which is available and it relates to any proceeding under this act, not general type of record. So with that we have completed section 23 and we come to the next section, which is section 24, division of other orders, and we'll start with section 24 in our next session that will be held tomorrow morning at 10:15. So we come to the end of this session.